સંશોધન બિલને લઈને બબાલ મચી ગઈ। બિલ રજૂ કરાયું અને સાથે વિપક્ષે વિરોધ કર્યો। આ બિલને ગેરબંધારણીય અને સાથોસાથ અન્ય બાબતોને લઈને પણ વિવિધ મત મૂકવામાં આવ્યા છે। જ્યાં વકફ બોર્ડ રજૂ થતાં વિપક્ષે હોબાળો શરૂ કર્યો। કિરણ રિજિજુએ વિપક્ષોના આક્ષેપો પર પલટવાર કર્યો અને બિલ ધાર્મિક આઝાદી વિરુદ્ધ ન હોવાનું જણાવ્યું। જેમને હક નથી મળ્યો તેમને હક અપાવવા માટે આ બિલ રજૂ કરાયું હોવાનું રિજિજુએ જવાબ આપ્યો। तो पहले अध्यक्ष महोदय जी, इन्होंने कॉम्पिटेंसी का मुद्दा यहां उठाया। मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, इस बिल में जो भी प्रावधान है आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है। और अब सुप्रीम कोर्ट का एक केस का मैं हवाला देना चाहूंगा, ब्रह्मचारी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली रिलीजियस डिनोमिनेशन के बारे में रूलिंग दिया गया है और उस रूलिंग के तहत वक्फ बोर्ड डजंट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ आर्टिकल 25 एंड 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें हमने जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। और सर, संविधान के कंकरेंस लिस्ट एंट्री नंबर 10 और 28 में आज के जो विषय हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो एंट्री 10 और एंट्री 28 में ये कंकरेंस लिस्ट में है। इसलिए ये पूरा लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस इस सदन के पास है, भारत सरकार के पास है, इस सदन में ये बिल पेश करने का। વિપક્ષોએ વકફ સંશોધન બિલ મુદ્દે સરકારને ઘેરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે। સમાજવાદી પાર્ટીના વડા અખિલેશ યાદવે જણાવ્યું કે આ બિલ લાવવા પાછળ સરકારનું ષડયંત્ર છે। વકફ બોર્ડમાં બિન મુસ્લિમોને સામેલ કરવાનો શું હેતુ છે તેવો સવાલ પણ અખિલેશ યાદવે ઉઠાવ્યો। बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। તો એઆઈએમઆઈએમના અધ્યક્ષ અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ પણ ભાજપ સરકાર પર આકરા પ્રહાર કર્યા। ઓવૈસીએ કહ્યું કે આ બંધારણની મૂળ ભાવના પર હુમલો છે। તમે હિન્દુઓ આખી મિલકત તમારા પુત્ર કે પુત્રીના નામે કરી શકો છો, પરંતુ અમે ત્રીજો ભાગ જ આપી શકીએ છીએ। જો હિન્દુ સંગઠનો અને ગુરુદ્વારા પ્રબંધન સમિતિમાં અન્ય ધર્મના સભ્યોનો સમાવેશ થતો નથી તો વકફમાં શા માટે? આ બિલ હિન્દુ અને મુસ્લિમ વચ્ચે ભેદભાવ કરે છે। તમે દેશના ભાગલા પાડવાનું કામ કરી રહ્યા છો। તમે મુસ્લિમોના दुश्मन छो। Government has sought to severely restrict how Muslims can manage their waqf property. Sir, in fact, Hindu endowment boards, I challenge, Hindu endowment boards
are recognized even by usage and custom. Here you are asking for documentation. No existing law, whether non-religious or personal, limits the right of a person to will their property or dispose it. But what you are doing over here, a Hindu can give through will his complete property to his daughter or son. I as a Muslim cannot do, I can only give 1/3. But what you are doing, I can gift, but I cannot give it in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Now you are stopping me from praying. Now what you are doing, you are restraining Waqf al-Awlad. That is not only discriminatory and Article 25, sir. There is no limit on anyone to will their property dispose of. Sir, to insist that a person has practiced Islam for 5 years. કોંગ્રેસ સહિતના વિપક્ષોએ બિલને ગેરબંધારણીય ગણાવ્યું. વિપક્ષ વતી કેસી વેણુગોપાલે વાંધો ઉઠાવતા કહ્યું કે આ ધર્મ અને બંધારણ દ્વારા આપવામાં આવેલા મૂળભૂત અધિકારો પર હુમલો છે. સરકાર સમુદાયો વચ્ચે વિવાદ ઊભો કરવા માંગે છે. આ બિલને લઈને સરકારનો ઈરાદો સારો નથી. સરકાર દેશના લોકોને વિભાજિત કરવા માંગે છે. બીજી તરફ સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ મોહિબુલ્લાએ કહ્યું કે વકફ સંશોધન બિલ મુસ્લિમોના અધિકારોની વિરુદ્ધ છે. આ બિલ મઝહબમાં દખલગીરી છે. જો આમ થશે તો દેશમાં કોઈ લઘુમતી સુરક્ષિત અનુભવશે નહીં. ટીએમસી સાંસદ સુદીપ બંદોપાધ્યાય, ડીએમકે सांसद के कनिमोझीए पण आ बिल ने बंधारण विरोधी गणाव्યું. सूबाई हुकूमतों को इख्तियार दिया गया. सर, हिंदू एंडोमेंट में जो कर्नाटका और तमिलनाडु में है वहां कोई मुस्लिम नहीं हो सकता. और 26 में आर्टिकल 26 का वायोलेशन है. 4 धाम में ये लिखा हुआ वाज़े तौर पर कि सिर्फ हिंदू होगा. बिहार उड़ीसा में भी यही लिखा हुआ है. पंजाब हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में सिर्फ सिख होगा ओनली, और ये उनका अधिकार है जिसको माना गया है. लेकिन मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? और सुन लीजिए सर, मैं आपकी तवज्जो के चाहता हूं. दुनिया का सबसे पहला वक़फ़ खाने काबा मक्के में है. क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं. और वक़फ़ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है. इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती. सर, ये हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं जिसका खुमियाजा हमें अभी नहीं, सदियों तक हम भुगतते रहेंगे, क्योंकि हम खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, उसकी पामाली कर रहे हैं. બીજી તરફ કેન્દ્રીય પ્રધાન અને જેડીયુના સાંસદ લલ્લનસિંહે વકફ બિલને સમર્થન આપી વિપક્ષો પર વળતો પ્રહાર કર્યો છે. લલ્લનસિંહે જણાવ્યું કે આ બિલ મુસ્લિમ વિરોધી નથી. તેઓ મંદિરની વાત કરે છે. મંદિરની વાત ક્યાંથી આવી? જ્યારે કોઈપણ સંસ્થા નિરંકુશ બને છે ત્યારે સરકાર તેના નિયંત્રણ માટે અને પારદર્શિતા માટે કાયદો બનાવશે. આ બિલ પારદર્શિતા માટે છે. લલ્લનસિંહે કોંગ્રેસને ઘેરતા કહ્યું કે જેમણે શીખોનો નરસંહાર કર્યો હતો તેઓ લઘુમતીઓ વિશે હવે વાત કરે છે. कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में यह मुसलमान विरोधी है. कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर, गुरुबाई, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है. आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है. यह एक कानून से बना हुआ संस्था है. उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है. पारदर्शिता होना चाहिए. कोई निरंकुश संस्था कोई भी कानून से, वक्फ बोर्ड कैसे बना? वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है, और कानून से बना हुआ कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है.